Okay, let us start the session for today. But in our last session, we discussed the topic, the concept of changing the sentence from active voice to passive voice along with the infinitive. Also, we discussed some of the questions, but there are few Yes, sir. questions who are remaining, which Cakap ada supposed to satu. solve by you all. So today, first of all, we are going to discuss all those questions. The possible answer for those questions, you all need to cross check with your answer. If your answer is correct, then that's good. If your answer is not correct, then you need to correct. You all need to recorrect that. Okay. So already we have discussed all the questions from book B, na? Yes, sir. So from book C, let us start the exercise. The first exercise, I think, also it was discussed during the last session, na? No, sir. Still that means still we need to discuss. So let us start. Here are some sentences in the passive voice. Some of them have mistaken in them. कुछ there are some sentences, कुछ sentences है जो कि passive voice में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे गलतियां हुई हैं. उन गलतियों को हमें फाइंड आउट करना है. Thereafter we need to correct them. We need to rewrite all the sentences with correctly. जो भी गलतियां हैं, जो mistakes हैं, उसको सही करना है. So first sentence is Karthik seems to be doing quite well in his new school. Karthik seems मतलब कार्तिक ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कहा जाता है टू बी डूइंग कि जो नए स्कूल में अच्छा कर रहा है. तो व्हाट करेक्शन यू ऑल हैव डन? अभिषेक यादव. Yes, sir. The Karthik seems to be done quite. What you have written? The Karthik seems to be done quite well in his new school. Karthik seems to be done. To be doing में क्या wrong है? पैसिव वॉइस में अगर टू बी डूइंग अगर आप कर देंगे तो ये पैसिव हो जाएगा, टू बी डन हो जाएगा. ये बी यहाँ पे इसलिए लगा है बिकॉज आईएनजी टू के बाद आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए. तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कंटिन्यूअस यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करने के लिए डूइंग किया गया है. मुस्कान यादव आपने भी भेजा था, आपने क्या लिखा है इसका आंसर? Karthik seemed to be doing quite well in his new school. बेटा कार्तिक सीम्स की जगह पे कार्तिक इज सैड हो जाना चाहिए. कार्तिक को कहा जाता है ना, कार्तिक तो स्वयं नहीं कह रहा है, कार्तिक दिखाई पड़ता है, कार्तिक ऐसा लगता है, कार्तिक इज सीम्स यानी कार्तिक दिख रहा है. कैसा दिख रहा है? ही इज डूइंग क्वाइट वेल इन हिज न्यू स्कूल. वो अपने नए स्कूल में कुछ अच्छा कर रहा है. तो ऐसा तो ये कहा जाता है ना, ऐसा दिखाई पड़ता है ना. तो what you need to correct it? How you need to correct it? You need to change this word. Karthik is sad. Karthik is sad to be doing quite well in his new school. Karthik is sad to be doing quite well in his new school. ध्यान देने की बातें हैं. यहाँ पे आपका कार्तिक इज सैड क्यों लिखा गया? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बता रहे हैं कार्तिक को कहा जाता है. कार्तिक सीम्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट को यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट किया गया. कार्तिक देख नहीं रहा है, कार्तिक को कहा जाता है. यहाँ पे कार्तिक इज नॉट द परफॉर्मर, यहाँ पे एक्शन नहीं कर रहा है कार्तिक, इसी पे एक्शन इसी पे हो रहा है. तो कार्तिक इज सैड टू बी डन, कार्तिक को कहा जाता है वो अच्छा कर रहा है इन हिज न्यू स्कूल.
समझ में आया? कर ले जाएंगे इसको। Yes, sir. Next, it is crucial for the plants to be kept away from direct sunlight. How many students have written the correct answer for this question? How many students has written the correct answer for this question? कितने लोगों ने लिखा है? किसी ने लिखा ही नहीं क्या? आप लोग फोटो भेजे थे, इसमें कुछ लिखा है या Yes, sir. क्या है? Yes, sir. क्या लिखे है? हैं. So it is crucial for the plant to be keep away from the sunlight. टू बी So कीप क्यों होगा? थोड़ा सा तेज बोले बेटा, लाउड बोले। इट इज क्रुशियल फॉर द प्लांट, ये इसमें तो आपको कुछ कहे, मतलब ये तो आपका एक तरीके से सेंटेंस पूरा तो है नहीं। इट इज क्रुशियल फॉर द प्लांट्स टू बी, ये मतलब रखा जाने वाले की बात, कीप आपका रखना हो गया ना, तो ये प्लांट्स को रखने वाला बात किया जा रहा है, तो टू बी केप्ट हो जाएगा फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। इट इज द करेक्ट आंसर। मतलब जो सेंटेंस है उसमें कोई गलती ही नहीं है, नो एरर, देयर इज ए नो एरर। नेक्स्ट देखें, थर्ड, महेश लाइक्स टू बी प्रेज्ड व्हेन ही डज वेल इन क्लास। इसका क्या लिखा है मुस्कान? जिन्होंने Is like उन्हीं से मैं पूछ भी रहा हूँ, बाकी लोग अगर लिखे हैं तो वो भी बता सकते हैं। बताइए मुस्कान। Mahesh liked to be praised when he आवाज does साफ well नहीं आ in रही, जरा तेज बोलिए। Mahesh liked to be praised when he does well in class. हाँ बेटा, फिर से बोलिए। Mahesh liked to be praised when he does well in class. महेश लाइक्स को आपने लाइक कर दिया, यही अंतर किया है। Like लाइक क्यों होगा, जरा ये बताइए मुझे। अरे क्या सोच के किया है, जरा ये तो बताओगी, तभी तो सुधार होगा। कि आंसर में बता दूं सीधा सीधा, काम खत्म हो। कहाँ पे गलती हुई आपको पता होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ कि नहीं। लाइक आपने क्या सोच के किया है, ये बताइए। like का third form लगा दें liked. लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड होगा ना, तो महेश लाइक्ड मतलब क्या हो जाएगा, जरा ये बताइए। महेश लाइक्स मतलब महेश पसंद करता है, महेश लाइक्ड अगर लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? महेश पसंद करता था। तो अंतर क्या रह गया है, पैसिव में आप इसको चेंज कर रही हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, महेश क्या पसंद करता है? टू बी प्रेज्ड व्हेन ही डज वेल इन क्लास, जब वो अच्छा करे तो अपनी प्रशंसा करना उसको अच्छा, उसकी लोग करें वो अच्छा लगता है। तो प्रशंसा तो कोई और कर रहा है ना, तो महेश को पसंद है, महेश लाइक्स का लाइक्स ही रह जाएगा। आप इसको नहीं चेंज, इसको आप पैसिव में नहीं चेंज कर सकते। जो आपका इन्फिनेटिव था उसी को चेंज किया जाना चाहिए। महेश लाइक्स टू बी प्रेज्ड व्हेन ही डज वेल इन क्लास, इट इज ऑल्सो करेक्ट, देयर इज नो एरर। टू बी प्रेज्ड का टू बी प्रेज्ड ही रहेगा। नेक्स्ट, आई वॉन्ट दिस पोस्टर टू बी प्लेस्ड एट द मेन एंट्रेंस। इसको कितने कितने लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं? अनुराग। Sir, I would like this poster to be placed at the main यहाँ entrance. पे तुमने आई वुड लाइक कर कह दिया, बस हो गया अंतर, पैसे में हो गया। यही गलती है, वांट के जहां पे वुड लाइक लिखा जाना चाहिए था।
आप जरा ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़े नहीं, क्या लिखा है? जरा फिर से बताइए कि क्या बोल रहे हैं। आई वॉन्ट दिस पोस्टर टू बी प्लेस्ड एट द मेन एंट्रेंस, क्या बोल रहे हो इसका आंसर? Sir, I would like this poster to be placed at the main entrance. तुमने वांट के यहाँ पे वुड लाइक कह दिया। मैं चाहता हूँ, आई वांट दिस पोस्टर टू बी प्लेस्ड एट द मेन एंट्रेंस, मैं ये चाहता हूँ कि ये पोस्टर जो है मेन एंट्रेंस के सामने, मेन एंट्रेंस पे प्लेस हो। और तुमने मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आई वुड लाइक, मैं पसंद करना चाहूंगा, मैं पसंद करूंगा, आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगा, आई वांट मैं चाहता हूँ। वांट को वुड लाइक कर दोगे तो पैसिव में चेंज हो जाएगा। वांट के जहां वुड लाइक होता तब ये सही होता है पैसिव में। गलत है, कहीं पे भी तुमने कोई चेंजेस ही नहीं किया, या तो गलत है। अगर गलती नहीं है तो आप साफ साफ बोलिए कि देयर इज नो एरर। वांट होना यहाँ पे क्या गलती है? अनुभव शुक्ला आप बताइए। अनुराग उपाध्याय कह रहे हैं वांट नहीं होना चाहिए, वांट ही यहाँ पे गलती है, इसलिए वांट को ये यहाँ से गायब कर रहे हैं। आप बताइए क्या होना चाहिए इसका? सर इसमें नो एरर है। बिल्कुल सही है, इट इज, यहाँ पे कोई भी एरर है ही नहीं, नो एरर है, ये भी नो एरर है। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? दिस पोस्टर टू बी प्लेस्ड एट द मेन एंट्रेंस, इस पोस्टर को मेन एंट्रेंस पे प्लेस किया जाए। तो आई वांट तो वही रह गया, अब पोस्टर को प्लेस किया जाए, ये तो आपको पैसिव में बोलना चाहेगा ना, पोस्टर तो स्वयं तो प्लेस करेगा नहीं। तो प्रॉपरली लिखा गया है द पोस्टर टू बी प्लेस्ड एट द मेन एंट्रेंस, नो एरर। इसके बाद आपका नेक्स्ट लास्ट है, दे वर ईगर टू बी ग्रीटेड बाय द मेयर। दे वर ईगर, वे बहुत ही उत्सुक थे, वे बहुत उत्सुक थे किस चीज के लिए? टू बी ग्रीटेड बाय द मेयर, मेयर द्वारा सम्मानित होना, सम्मान पाने के लिए वे बहुत उत्सुक थे। इसमें क्या दिक्कतें हैं, इसमें क्या कमियां हैं, किसको सही किया जा सकता है? अभिषेक, इसमें क्या आपने सही किया? तो इसमें कोई चेंज नहीं किया। मुस्कान आप बताइए, आपने तो किया है ना? No change. नो चेंजेस, बिल्कुल सही। दे वर ईगर, वे उत्सुक थे, इसको पैसिव नहीं बनाया जा सकता। लेकिन क्या उत्सुक थे? टू बी ग्रीटेड बाय द मेयर, मेयर द्वारा सम्मानित होना। तो ग्रीट तो स्वयं कर नहीं रहे हैं, तो पैसिव में है ही वो। नो चेंजेस यानी नो एरर। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, देयर आर सम infinitives. You all need to change these infinitive into the passive voice. Thereafter, you all need to make the sentence by using these words, these infinitives. टू पैक का पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव, अगर टू पैक को अगर हम पैसिव में चेंज करें तो क्या होगा अनुराग? टू बी पैक्ड। टू बी पैक्ड, टू पैक बात एक ही है, दोनों है। टू बी पैक्ड, टू बी पैक्ड। टू स्टिच का क्या होगा? टू बी स्टिच्ड। टू कंटिन्यू, टू बी स्टिच्ड। कंटिन्यूड। का क्या होगा? टू बी कंटिन्यूड। टू सैक्रिफाइस का टू बी सैक्रिफाइड। तो अब टू बी पैक्ड, टू बी कंटिन्यूड, टू बी स्टिच्ड, टू बी सैक्रिफाइड, इसका एक एक सेंटेंस बनाना है अपने आप से, आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। टू बी कंटिन्यू अभी है, कंटिन्यू रहेगा। दैट मीन्स द स्टोरी ऑफ चैप्टर नंबर 11 will be continued, will be to be continued। अब टू बी कंटिन्यूड मतलब फ्यूचर तक चलेगा, टू बी कंटिन्यूड टुमारो। द स्टोरी ऑफ चैप्टर नंबर 11 इज टू बी कंटिन्यूड टुमारो। कब तक कंटिन्यू होगा आप बोल सकते हैं? इज द स्टोरी, दिस स्टोरी इज टू बी कंटिन्यूड टिल 5th ऑफ, आज कितना तारीख है? 26 है। दिस स्टोरी इज टू बी कंटिन्यूड टिल 29th ऑफ
मार्च या अप्रैल, 29 ऑफ अप्रैल, कुछ भी अप्रैल लगा के जो भी डेट कर दें, या टुमारो कर दें, या डे आफ्टर टुमारो कर दें। टू पैक, क्या पैक हुआ जाए, टू बी पैक्ड क्या होना चाहिए? कपड़े आप So पैक things. करने, these clothes are to be packed for traveling. The sweets are to be packed properly before she leaves, before we left our home, before we leaves our home. The sweets are to be packed. जो स्वीट्स है उसे भी पैक किया जाना बाकी है। The sweets are to be packed. इसी तरह sacrifice का मतलब we have to sacrifice, नहीं, अब we have to, अब यहाँ पे we have to sacrifice गलत हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। जो क्या sacrifice करना पड़ेगा उसको आप सब्जेक्ट यहाँ पे लाइए। क्या क्या हमारी जो सब मिला के बाहर का आजकल जो माहौल है कोरोना वाले, उसमें जो बाहर के फूड आइटम है उसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा ना हमें, तो हम सेक्रीफाई करेंगे उन सब चीजों को। तो यानी उसको लाइए पैसिव में, क्या उसको फ्रंट पे लाएंगे। आउटसाइड फूड टू बी सेक्रीफाइड, आउटसाइड फूड टू बी सेक्रीफाइड ड्यूरिंग दिस कोविड-19, ड्यूरिंग दिस सिचुएशन ऑफ कोविड-19। आउटर फूड या outside food to be sacrificed during this COVID this corona situation. In this way you all can tell. To sacrifice का आप लोग अपना ऐसे कोई एग्जांपल बना लीजिएगा। स्टिच मीन्स क्या होता है? तो सिलना। सिलना। अब बैग भी सिला जा सकता है, मास्क भी सिला जा सकता है। A mask has to be stitched by myself. मेरे द्वारा भी सिला जाना बाकी है। My own mask has to be stitched. My own mask has to be stitched by this evening. इस शाम को स्टिच किया जाना बाकी है। तो in this way you all can write your own examples, your own sentence. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So shall we move ahead on the next section? Yes, sir. Yes, sir. कोई ग्रामर स्टेशन बचा है ना? क्यों हो गया था वो? Yes, sir. तो पूरा नहीं हुआ था। चलिए ठीक है, देखते हैं ग्रामर स्टेशन। Identify if the sentences are in the active voice or passive voice. The tomatoes need to be dried in the sun. Active voice है, passive voice है? अनुराग? तो पैसिव है। पैसिव वॉइस है, बहुत इजी है। I asked him to give me some time. रत्नेश is not connected well. अनुराग उपाध्याय। सर एक्टिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस है। I asked him to give me some time. I asked him to give me some time. हाँ एक्टिव ही है। क्यों मुस्कान? Corrective voice. एक्टिव है। He is said to be a very good teacher. ये कैसा है? जल्दी से बताइए, कोई भी। पैसिव वॉइस। Passive Or voice. passive voice. कुणाल is to be congratulated. कुणाल को कंग्रेचुलेशन किया जाना है on his brilliant performance in the sports meet. Active या passive? पैसिव। पैसिव। Zina wanted to take part in the road safety rally. एक्टिव वॉइस। Active है। Active voice. Zina स्वयं चाहती है। Complete the sentence using the correct form of the verbs. The police needs to murderer. पुलिस को
द पुलिस नीड्स टू मर्डरर, क्या होना चाहिए? कैच से कैच का यूज करना है। द पुलिस नीड्स टू मर्डरर टू सेव, Sir, to catch. क्या होगा? Sir, to catch. To save. टू बी कॉट। द पुलिस नीड्स टू मर्डरर टू बी कॉट। पुलिस को मर्डर को कॉट किया जाना चाहिए। मर्डर खुद, जो मर्डरर है वो खुद तो थोड़ा टू कैच खुद थोड़ो कैच करेगा, वो तो उसे तो पकड़ा जाना है ना, कि खुद ही पकड़ उठेगा, सरेंडर नहीं करेगा। जो मर्डरर है उसको स्वयं पकड़ा जाना है, उसको कोई और पकड़ेगा। तो दैट मीन्स कि दिस सेंटेंस शुड बी इन द पैसिव वॉइस। So final answer is the police needs to murderer to be caught to save face in front of the public. Okay, Yes, sir. move ahead on the second sentence. The second sentence is the kids were happy. The kids were happy out for a To long be drive. taken. Sir, to be taken. क्यों हैप्पी होंगे? जब उनको बाहर ले जाया जाएगा ना, तो किड्स को बाहर ले जाने पे अभी तो पैसे, किड्स को बाहर कौन लेके जाएगा? तो किड्स स्वयं तो जाएंगे नहीं बाहर, कोई बाहर ले जाएगा, तो यानी ये ऑब्जेक्ट होंगे, तो ये पैसिव में होगा, तो कैसे लिखा जाएगा? To be taken. To be taken. To be taken, correct. The kids were happy to be taken out for a long drive. Correct answer. The next one is I didn't share my phone number because I didn't want contact by stranger. I didn't share my phone number. मैं अपना फोन नंबर मैंने नहीं शेयर किया, because क्योंकि I did not want, मैं ये नहीं चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी? कि जो stranger Connected. To be contacted. I did not want to be contacted. मैं कांटेक्ट नहीं किया जाना पसंद करती थी स्ट्रेंजर द्वारा। तो क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? टू बी कॉन्टेक्टेड। ओके, नेक्स्ट, निहाल वाज होपिंग फॉर द क्रिकेट टीम। निहाल आशा कर रहा था अपने सिलेक्शन के लिए। तो निहाल खुद सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट अगर लिख दे तो निहाल वाज होपिंग सेलेक्ट, यानी सेलेक्ट निहाल थोड़ा कर रहा है, सेलेक्ट तो कोई और कर रहा है निहाल को। Yes, sir. तो क्या होना चाहिए? निहाल वाज होपिंग, पैसे में क्या होगा? To be selected. To be selected. To be selected. To be selected for the cricket team. Very good. The last one is the villain wanted the hero. The villain wanted the hero To be suited. to be shooted नहीं होगा बेटा, शॉट होता है। ठीक है, शूट शूट शॉट, शूट शूटेड शॉट होगा या Yes, शॉट sir. होना चाहिए? फिलहाल थर्ड फॉर्म शॉट है, ये मुझे कंफर्म है। टू बी शॉट। The villain wanted the hero to be shot dead. ठीक है, अभी यहां तक किसी को कंफ्यूजन? No, sir. चेंज द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, हाई स्कूल में जो बोर्ड एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड का स्पेशली होता है, जो आपके आसपास के लोग होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में 4-5 क्वेश्चन मेनली, मतलब स्पेशली, मतलब लगभग वही 4-5 क्वेश्चन आते ही हैं। लिटरेचर का उनका खुद का बुक होता है, किसी भी पब्लिकेशन का, वही 12 चैप्टर लिटरेचर होगा, उसी में से क्वेश्चन घूम घुमा के पूछ लेंगे। लिटरेचर में आपका स्टोरी होगा, पोएम हो सकता है, पोट्री अप्रोच हो सकता है, जैसे गेट गोइंग टाइप का क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग उस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप लोग कर ही ले जाएंगे। वोकैबुलरी टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो जो आपके बुक में रहेगा, बुक से ही पूछा रहेगा, बुक पे ही बेस्ड होता है। लेकिन ग्रामर में जानते हैं क्या घूम घुमा के आता है? एक एक्टिव पैसिव आता है, एक नरेशन आता है, एक हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह अगर आ गया, कोई एरर डिटेक्शन आ गया कि कहाँ पे गलत है, उसमें गलत हो सकता है कि ऐसे भी एक्टिव पैसिव में भी गलती हो सकती है, ग्रामेटिकली कहीं पे एरर हो सकता है, कहीं पे सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पता लगा वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए तो प्लूरल है। तो बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं।
तो अगर आप लोग ढंग से इसको पढ़ लेना तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर आपको यूपी बोर्ड का एग्जाम देना पड़ गया 9th 10th का, तो आप लोग बहुत आसानी से आप लोग कर ले जाएं और अच्छे नंबर यानी 90+% नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आप इसी सेक्टर में आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि तो अभी ये शुरुआत है, आने वाले समय में बहुत ही बियॉन्ड रूप लेने वाला है इंग्लिश, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल नाउ मूव अहेड ऑन द थर्ड क्वेश्चंस। चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव को ही देख लीजिए, ये सेकंड लेवल है। पहले लेवल में तो आपको नॉर्मल, आपको पहला लेवल तो यही है, समीरा फोर्सेस हर सन टू ईट वेजिटेबल्स। अब इसको आपको पैसे में चेंज करना तो बहुत आसान है। फिलहाल यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव है, ये सेकंड लेवल कह सकते हैं, ये सेकंड लेवल कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव है। बिना इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव में बदलना सबसे आसान होता है, जो कि आपको पहले सिखाया भी गया है। जब इन्फिनेटिव वाले आ जाते हैं तो थोड़ा सा लोगों को परेशानी होने लगती है, इसी की प्रैक्टिस करना होता है। और इसको जो कर ले गया तो पहला लेवल तो कुछ है ही नहीं। फिलहाल यहाँ पे क्या है, समीरा फोर्सेस, जो समीरा है वो फोर्स करती है हर सन, अपने सन को, अपने बच्चे को फोर्स करती है। क्या फोर्स करती है? टू ईट वेजिटेबल्स। इसका क्या होगा, पैसिव में कैसे चेंज होगा? कोई बता सकता है पैसिव कैसे चेंज होगा? कि मैं ही बता दूं सीधा आंसर? Yes, sir. बताइए। Son, her son forced to eaten the vegetable. बेटा आपको पता है, जब सेंटेंस में आपका पहले नाउन आया रहे तभी आप प्रोनाउन बाद में यूज कर सकते हैं। तो अभी हर से तो शुरुआत होगा नहीं, हर के जगह पे आप समीरा सन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से बोलिए। Yes, sir. So, Samiraj son forced to be eaten the vegetable. समीरा सन। चलिए ठीक है, मुस्कान आप बताइए, आप और भी कोई ट्राई करेगा? मुस्कान, अनुभव, अनुराग, आकृति। Sir, Samira's son needs to be forced to eat vegetables. नीड्स टू बी फोर्स्ड, उसको फोर्स करने की आवश्यकता है। आवश्यकता तो कहीं पे लिखा ही नहीं कि अपनी मर्जी से आप आवश्यक बना दोगे आप। समीरा फोर्सेस हर सन, यानी हर सन। अब यहाँ पे क्या है, समीरा फोर्सेस, फोर्सेस से क्या पता चलता है? इस सेंटेंस का टेंस पता चलता है, कौन सा टेंस है? The present indefinite. तो इसका मतलब हर सन यानी समीरा सन। जब पैसे बनेगा तो ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर तो ना तो अभिषेक ने लगाया, बाकी लोग तो नीड्स टू वगैरह पता नहीं क्या क्या ऐड करने लगे। समीरा सन इज फोर्स्ड, समीरा का जो सन है उसको फोर्स किया जाता है क्या करने के लिए? टू ईट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स खाने के लिए। तो साफ साफ सब यहीं पे चेंज होना है। टू ईट वेजिटेबल्स को तो आप यहाँ पे टू बी ईटन वेजिटेबल्स थोड़ा कह सकते, या तो फिर यहाँ पे ना चेंजेस होता। समीरा सन, आप इसी को आप एक्टिव में आप पैसे में बदल दीजिए, यही आपका बदला जाएगा केवल। समीरा जो है वो फोर्स करती है अपने सन को क्या करने के लिए? वेजिटेबल खाने के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं, अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, समीरा फोर्स करती है अपने सन को वेजिटेबल्स खाने के लिए। अब इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले, पैसिव में बोले तो क्या, जो समीरा का सन है वो फोर्स किया जाता है बाई समीरा, बाई ना लगाएं, लेकिन क्या करने के लिए? टू ईट वेजिटेबल्स, सब्जी खाने के लिए। तो दोनों में तो बात वही आएगी, तो टू ईट वेजिटेबल्स में तो आपको कुछ चेंजेस ही नहीं करना है। इसका मतलब दोनों में आपका वही सेम आ जा रहा है, केवल आपका यहाँ पे चेंज होना है। समीरा फोर्सेस हर सन को, समीरा सन इज फोर्स्ड टू ईट वेजिटेबल्स। ओके, समीरा सन इज
supposed to eat vegetables. हो जाएगा. नेक्स्ट 2 मिनट और बचे, जल्दी जल्दी करते हैं. You have to wash the meat before marinating it. You have to wash the meat before marinating it. You have to wash. You have to wash the meat. You have to wash the meat. मीट को आपको धुलना पड़ेगा. यहाँ पे तो ये एक्टिव लग रहा है, तो इसको पैसिव कैसे होगा? The meat have to be washed. Sir, the meat has to be washed Very before good. marinating. यहाँ पे हैज हो जाएगा. वेरी गुड. द मीट हैज टू बी वॉश्ड. आप यहाँ पे चाहे तो नीड लगा सकते हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे आवश्यक है ना. यू हैव टू वॉश आपको करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे नीड लगा सकते हैं. फिलहाल नहीं लगा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. द मीट नीड्स टू बी वॉश्ड बिफोर मैरिनेटिंग. ओके. Yes, sir. The meat needs to be washed before marinating it. The last minute is going on, so अब मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा. थर्ड सेंटेंस देखिए. We need a good amount of rain for the crops to grow. अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सभी लोग दोबारा ज्वाइन करिएगा, ये खत्म होना चाहिए आज. We needs a good amount of rain. हमें good amount of rain चाहिए for the crops to grow. क्रॉप्स के लिए, ग्रो क्रॉप्स की बढ़ोतरी के लिए. अब we need a good amount of rain for the crops to grow. क्या होगा? The crops needs to good amount of rain to grow. जो क्रॉप्स है ना उनको चाहिए एक्चुअली में. The crops needs good amount of rain to grow. The crops need a good amount of rain to grow. Okay. Yes, sir. To make a paper bracelet, you need paper mat. To make a paper bracelet, paper bracelet बनाने के लिए you need paper. तब यहाँ पे क्या पेपर, अब ये चाहिए, you need paper match. तो पाइपर